Good morning, my dear friends. This is brief introduction about me. Today I am going to discuss about project management. This topic is studied by mechanical, civil and management student. And from this topic, question asked in various exam like IAS, IFS, IES, State Engineering Exam, GATE, ISRO, DRDO, etc. Hence, we can say this topic is very important. What is project and what is project management? So this is the definition. Project we can define as a combination of interrelated activities which must be executed in certain order before entire task completed, or any project involve planning, scheduling and controlling a number of interrelated activities with use of limited resource, namely man, machine, money, material and time. The project may be extremely large and complex. For example, building a house, construction a highway, or launching a satellite in Earth orbit. These are examples of project. Project management. What is project management? It can be defined as a structural way of planning, scheduling, implementing, monitoring, and controlling various phases of project, such as time, money, material, manpower, and other resources. To achieve the end goal of a project on time, PERT and CPM are two project management techniques that every management should have idea or manager should have idea about PERT and CPM. This technique help in displaying the progress and series of action and event of a project. Project scheduling and project management using the concept of network diagram, CPM and PERT for optimum utilization of limited resource, either human or non-human. Project scheduling or project networking or project management is not only related to activity on the show floor but universal in nature. Even software industry work in the project management mode. Even construction industry work in the project management mode. Even government also work in project management mode. This is universal in nature so far. So for that sake, all of us must know that how to define project, what make the project, what are the various ingredient of the project. Initially, the Gantt chart used in Gantt chart only time domain we considered. No interrelationship between activities represent in this chart. Nowadays, PERT and CPM use in project. So what is PERT? PERT full form is प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक. ये फर्स्ट टाइम 1958 में यूएस नेवी ने पोलरिस मिसाइल लॉन्च करने के लिए यूज किया था. बट के अंदर हम क्या करते हैं कि अब अपने प्रोजेक्ट को हम उसको इवेंट और एक्टिविटीज में ब्रेक करेंगे और उनका एक क्या सीक्वेंस होगा वो भी डिस्कवर करेंगे. उसके बाद हम नेटवर्क बिल्ड करेंगे और उसके साथ साथ हमको एक्टिविटी कितना टाइम कंज्यूम कर रही है वो भी हमको आइडिया होना चाहिए. व्हाट इज सीपीएम? सीपीएम is the critical path method. It is developed in 1960 by DuPont to solve project scheduling problem. DuPont ने जब ये टेक्निक अप्लाई की थी, केमिकल प्लांट में ये टेक्निक अप्लाई की थी. इसमें क्या करते हैं, ये जो टेक्निक है ये हमको हेल्प करती है डिस्टिंग्विश द क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल टास्क और एक्टिविटी, reduce the time and bypass the queue formation in the process. It is essential to identify critical activities because if any activity is hindered, it will clutter the whole process or it will delay the whole process. इसमें भी हम क्या करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट को एक्टिविटी में स्मॉल स्मॉल एक्टिविटी में हम ब्रेक करेंगे. तो वो एक्टिविटी कितना टाइम कंज्यूम करेगी, कितना कॉस्ट लेगी, कितना मैन पावर चाहिए, कितने क्या क्या मशीनरी रिक्वायर है, ये सब हम उसको ब्रेक कर लेंगे. देन हम नेटवर्क बनाएंगे और उसके बाद हम क्रिटिकल पाथ फाइंड करेंगे. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम. पर्ट जो होता है हमारा इवेंट ओरिएंटेड होता है, सीपीएम जो होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है. पर्ट के अंदर जो है जो एक्टिविटी टाइम होता है वो अनसर्टेन होता है और वी कैन से हमको कुछ आइडिया नहीं होता है कि ये एग्जैक्ट टाइम कितना लेगा. बट सीपीएम के अंदर हमको एक्टिविटी का टाइम पता होता है कि ये एक्टिविटी एवरेज इतना टाइम लेगी. पर्ट के अंदर पर्ट जो हम यूज करते हैं टू कंट्रोल टाइम एंड सीपीएम जो यूज करते हैं टू कंट्रोल टाइम एंड कॉस्ट. पर्ट जो होता है वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को फॉलो करता है बट सीपीएम इज ए डिटर्मिनिस्टिक मॉडल. मींस जो पर्ट के अंदर जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जो होता है इसका मतलब ये है कि जो पर्ट के अंदर जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी और दैट प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन विल बी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन. पर्ट के अंदर एक्टिविटी का जो टाइम होगा वी विल रिप्रेजेंट बाय 3 टाइम्स. फर्स्ट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, second is
पेसिमिस्टिक टाइम, थर्ड इज मोस्ट लाइकली टाइम। ये जो तीनों जो टाइम है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रिमेंबर इट। पर्ट के अंदर हमको एक्टिविटी अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज होती है, बट सीपीएम के अंदर प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज होती हैं। मींस एक्टिविटी भी प्रिडिक्टेबल होती है, टाइम भी प्रिडिक्टेबल होता है ऑफ एक्टिविटीज का, बट पर्ट के अंदर ऐसा नहीं है। पर्ट जो है जनरली आर&डी में यूज किया जाता है, बट सीपीएम जो है जो नॉन रिपीटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। पर्ट के अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट होती है, जबकि सीपीएम के अंदर कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज होती है। पर्ट का जो एग्जांपल है लॉन्चिंग अ सैटेलाइट इन अर्थ ऑर्बिट, एंड जो सीपीएम का एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ब्रिज, हाईवे एक्सेट्रा। तो ये जो दोनों टेक्निक अप्लाई करने के लिए हमको नेटवर्क बनाना जरूरी है। और नेटवर्क क्या होगा, जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट होगा, जो प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटी होंगी, उस एक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क के अंदर कुछ टर्म यूज होंगे, दैट term should be clear. Activity: any portion of a project task which required by project use up resource and consume time may involve labor, paperwork, machinery operation. For example, अगर मैं अपने घर से एयरपोर्ट गया, जो जब घर से निकला दैट वाज माय इवेंट। जब मैं घर से एयरपोर्ट का जो ट्रेवल जो डिस्टेंस ट्रेवल की दैट वाज माय एक्टिविटी, एंड एयरपोर्ट पर जब मैं पहुंच गया दैट विल बी माय finishing event. Event, as I told you, event beginning or ending point of one or more activities, instantaneous point in time. It is also called nodes or connector. तो जैसे मैंने घर से स्टार्ट किया दैट वाज माय टेल इवेंट, जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंच गया दैट इज माय हेड इवेंट। अगर मैं इस डायग्राम से इस नेटवर्क से समझने की कोशिश करूं, ये मेरा इवेंट है, ये इस नेटवर्क के अंदर 4 इवेंट हैं और 3 एक्टिविटी हैं। इस एक्टिविटी से जो पहले ये एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रीसीडिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के बाद में जो ये एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड सक्सेसर एक्टिविटी, एंड दिस सर्कल रिप्रेजेंट फॉर इवेंट। दिस इज फॉर दिस एक्टिविटी, दिस इज टेल इवेंट एंड दिस इज हेड इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, और मैं डिटेल में समझे, जैसे मेरे दादा, फादर, ये मेरे प्री डिसीजर हैं, मेरे चिल्ड्रन, माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल बी माई सक्सेसर। नेटवर्क कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ रूल हैं जो कि हमको पता होना चाहिए। हम हर एक एक्टिविटी को केवल एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब हम एक्टिविटी को नेटवर्क में रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे पहले जो भी एक्टिविटी हो that should be completed. Arrow depicting various activities are indicative of logical procedure only. The length, shape, direction of arrow has no relation to the size of activity. The arrow direction indicates the general progression in the time. Arrow की जो direction होगी from left to right होगी, it means जो हमारा प्रोजेक्ट की प्रोग्रेशन है that will be from left to right. When a number of activities terminate at one point, it indicates that no activity emanating from that event may start unless all activities terminating there have been completed. In a network should have only one initial and terminal event or node. ये एक नेटवर्क का स्मॉल पोर्शन है। ये A and B इनकमिंग एक्टिविटी है, C आउटगोइंग एक्टिविटी है फ्रॉम दिस event or node. At this event or node, incoming activity is more than outgoing activity. Hence, this node is called merge node or merge event. At this node, incoming activity is less than outgoing activity. Hence, this node is called worst node or worst event. A and B are predecessor of C. Now, parallel activities between two events without intervening events are prohibited. When two or more parallel activities in a project have the same head and tail event, then in this case, dummy activity will use. What is dummy activity? Dummy activity do not consume time or resource. It only represent logical representation. An efficient network contains minimum number of dummy activities required to portray the correct precedence relationship. It's generally represented by dotted line. तो आप नेटवर्क के अंदर कम से कम डमी एक्टिविटीज को रखेंगे, और डमी एक्टिविटीज और एक्चुअल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। जो डमी एक्टिविटीज को हम नेटवर्क के अंदर जो रिप्रेजेंट करेंगे बाय डॉटेड लाइन, दैट इजीली विजिबल इन नेटवर्क। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, हमारे नेटवर्क के अंदर लूपिंग नहीं होनी चाहिए और साइकिलिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे डी, ये एक स्मॉल पोर्शन ऑफ नेटवर्क है, डी से पहले सी एक्टिविटी एंड एफ एक्टिविटी है, ई से पहले डी है, एंड जी एंड एफ से पहले एफ ई एक्टिविटी है। तो देखो, डी से गए, डी कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद ई कंप्लीट हुआ, फिर अगेन एफ कंप्लीट होने जा रहा है, जी कंप्लीट होने जा रहा है। तो यहाँ पर एक साइकिल बन गई है। तो दिस साइकिल और लूपिंग शुड नॉट बी देयर। नेक्स्ट रूल इज डैंगलिंग शुड बी अवॉइडेड।
जैसे ये एक्टिविटी 4 to 5 एक एक्टिविटी है, 3 4 5 6 7 8 आर इवेंट। 4 to 5 एक एक्टिविटी है और जिसको हमने ऐसे ओपनली छोड़ रखा है। इसको हमको एंड इवेंट से ज्वाइन करना चाहिए था, बट हमने इसको ज्वाइन नहीं किया। तो ऐसा भी नहीं रखना चाहिए। एक नेटवर्क का एक ही एंड पॉइंट होगा और एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा। एक से ज्यादा ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होंगे और ना ही एंडिंग पॉइंट होंगे। ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आया, गेट 2016 सेट नंबर 3 में आया। क्वेश्चन नंबर 1, इन पर चार्ट एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, बाइनोमियल, पॉइसन, बीटा। एज आई टोल्ड यू, द पार्ट के अंदर जो एक्टिविटी टाइम है दैट विल फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। जो प्रोजेक्ट का जो क्रिटिकल पार्ट, टोटल कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका इसरो में आया हुआ है 2020 में, और गेट में भी क्वेश्चन आ चुका है सेम क्वेश्चन। डमी एक्टिविटी इज यूज इन पार्ट नेटवर्क टू डिस्क्राइब। क्यों यूज करते हैं हम डमी एक्टिविटी को? प्रेसिडेंस रिलेशनशिप के लिए, नेसेसरी टाइम डिले के लिए, रिसोर्स रिस्ट्रिक्शन के लिए, रिसोर्स आइडलनेस के लिए। रिसोर्स तो कंज्यूम करता ही नहीं, टाइम भी कंज्यूम नहीं करता है, ओनली एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ऑप्शन इज ए। सिचुएशन इन नेटवर्क डायग्राम, क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं? जैसे ये एक नेटवर्क का पोर्शन है। ए इज द प्रीडिसीसर ऑफ एक्टिविटी बी एंड सी। मीन्स ए जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बी एंड सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, एंड बी एंड सी इज द सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी ए। इसका मीनिंग क्या है? ए एंड बी कंप्लीट होने के बाद सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ए एंड बी प्रीडिसीसर एक्टिविटीज ऑफ एक्टिविटी सी, एंड सी इज द सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी ए एंड बी। इस नेटवर्क का क्या मीनिंग है? ए एंड बी एक्टिविटी फिनिश होने के बाद सी एंड डी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। सी एंड डी एक्टिविटी का जो प्रीडिसीसर है वो ए एंड बी है, एंड ए एंड बी का जो सक्सेसर एक्टिविटी है वो सी एंड डी है। देखिए इस नेटवर्क के अंदर हमने डॉटेड लाइन से ये एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया है। इट मींस दैट दिस एक्टिविटी इज डमी एक्टिविटी। ये लॉजिकल एक रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि डी एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगी जब आपकी ए एंड सी एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी, एंड बी एक्टिविटी स्टार्ट होने के लिए ओनली ए का कंप्लीट होना जरूरी है। प्रीडिसीसर ऑफ बी इज ए, एंड ए का जो सक्सेसर एक्टिविटी है वो बी एंड डी एक्टिविटी है। Project network. What is project network? A network used to represent a project is called project network. A project network consists of a number of nodes, typically shown as a small circle or rectangle, and a number of arcs shown as arrow that lead from some node to another. एक नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? एक तो एक्टिविटी का इंफॉर्मेशन जरूरी है। हम क्या, एज आई टोल्ड यू कि हम प्रोजेक्ट को हम स्मॉल स्मॉल एक्टिविटी में ब्रेक करेंगे। उसके बाद हमको प्रेसिडेंस रिलेशनशिप भी एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। मींस कौन सी एक्टिविटी खत्म होने के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो, और ये प्रेसिडेंस रिलेशनशिप पता होने के साथ साथ हमको टाइम इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये जो एक्टिविटी है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी। मींस एक्टिविटी का ड्यूरेशन है वो भी हमको हर एक एक्टिविटी का पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क। वन इज एक्टिविटी ऑन आर्क नेटवर्क एंड सेकंड इज एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क। एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क के अंदर डमी एक्टिविटी हो सकती है, एंड जो एक्टिविटी होगा हम उसको एओएन के अंदर आर्क पर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि एओएन डायग्राम में एक्टिविटी को नोड के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। एओएन डायग्राम के अंदर कोई भी डमी एक्टिविटी नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एओएन नेटवर्क के अंदर आपकी कोई भी डमी एक्टिविटी नहीं होगी। ये जो नेटवर्क है इजी टू रिप्रेजेंट और इजी टू मेक एओएन। एओए में आपकी डमी एक्टिविटी होंगी, बट हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डमी एक्टिविटी कम से कम होना चाहिए नेटवर्क के अंदर। AON network have advantage over AOA network. AON project network are considerably easier to construct than AOA project network. Activity on node बहुत आसान होता है उसको कंस्ट्रक्ट करना एज कम्पेयर टू एओए डायग्राम। एओ एक्टिविटी ऑन नोड को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इवन इन एक्सपीरियंस यूजर भी एक्टिविटी ऑन नोड को नेटवर्क को अंडरस्टैंड कर सकता है। एक्टिविटी ऑन नोड प्रोजेक्ट नेटवर्क आर इजियर टू रिवाइज देन एओए प्रोजेक्ट नेटवर्क व्हेन देयर आर चेंज इन द प्रोजेक्ट। अगर कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी चेंज होती है तो एक्टिविटी ऑन नोड जो नेटवर्क है, प्रोजेक्ट नेटवर्क है, उसको आसान रहता है मॉडिफाई करना और चेंज करना। ये एक सीपीएम का एग्जाम्पल है, क्रिटिकल पाथ मेथड का एग्जाम्पल है। ये एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन है और ये एक्टिविटीज नेम है। जैसे एक्टिविटी नेम इज ए, इसका description is this, activity B description is this, lay the foundation। B का जो immediate predecessor है that is A का कोई भी predecessor नहीं है। A का जो estimated duration है 2 वीक लगेगा। B को कंप्लीट होने में 4 वीक लगेगा। C एक्टिविटी को कंप्लीट होने में 10 वीक लगेगा।
और सी एक्टिविटी है क्या, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, पुट अप द रफ वॉल। डी एक्टिविटी क्या है, पुट अप द रूफ। ये कब होगी, जब सी एक्टिविटी हो जाएगी, मींस दीवाना बनने के बाद छत पड़ेगी और उस छत का पढ़ने में हमको 6 वीक लगेगा। ये जो डायग्राम है ये AON नेटवर्क है, AON डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ही स्टार्ट पॉइंट है, एक ही फिनिशिंग पॉइंट है। इस नेटवर्क के अंदर कोई भी डमी एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज दिस नेटवर्क इज AON नेटवर्क और AON डायग्राम। एज यू कैन सी द एक्टिविटी A represented on node, activity B represented on node, and this 4 is represent completion time। मीन्स बी को जो कंप्लीट होने में 4 वीक लगेंगे, ए को कंप्लीट होने में 2 वीक लगेंगे। इनकी जो टाइम है, जो भी एक्टिविटी होगी उसकी यूनिट सेम रहेगी। अगर आप डे रखना चाहते हैं तो डे रखेंगे, वीक रखना चाहते हैं तो वीक रखेंगे। सारे प्रोजेक्ट के अंदर हर एक एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन ऑफ यूनिट ऑफ ड्यूरेशन जो होगी वो सेम होगी, या तो वीक रख लीजिए या डे रख लीजिए या मंथ रख लीजिए, बट यूनिट शुड बी सेम ऑफ ईच एक्टिविटी। ये अभी 2020 गेट में क्वेश्चन आया, वो AON डायग्राम के ऊपर आया था। क्या क्वेश्चन आया, देन दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ये IFS से मैंने क्वेश्चन लिया है, 2018 में आया। ये 15 मार्क का क्वेश्चन था IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। ये आपका पार्ट से रिलेटेड है। इसमें आपका एक्सपेक्टेड टास्क टाइम एंड देयर वेरिएंस पूछा है एंड क्रिटिकल पाथ पूछा है। इसको सॉल्व करना अगली क्लास में सीखेंगे। आज इतना ही, थैंक यू सो मच।